Praise the Lord, church. Hope you all are doing well. Let us close our eyes and bow down in prayer. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for this beautiful day and this beautiful time that you have given us. Thank you for getting us through this entire year, Lord. Lord, as we go on into praise and worship and the word, Lord, I pray that I surrender all of us into your hands, the worship leaders, our pastors, and all the people who are going to watch this. Lord, as we hear the word, let us not only be hearers of the word, but also doers of the word, Lord. Lord, let us make your word an integral part of our body so that that word dominates our heart and makes us like you, Lord Jesus. Let us just walk like you, talk like you, and do things like you, Lord. And let your will be done in and through us, Lord. Let your fragrance come through us, Lord. Thank you, Lord. And Lord, I just surrender everything into your hands, Lord. In Jesus' name, I pray. Amen. Come and join me in worshipping Jesus, our Lord and King. Hallelujah. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू। मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू। मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो।
नाम ऊंचा रहे. Thank you, Lord. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Sing it out. God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, the sinners saved, the work of your power. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, the sinners saved, the work of your power. Oh God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Let's sing. I am blessed. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory. Jesus' name. I am blessed. I am called.
God, you're so good. You are so good. God, you're so good. You're so good to me. प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। आइए, ये समय है दान और दशवांश का। हम देखते हैं लूका का 21 का 1 से 4 वचन। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना धन भंडारे में डालते हुए देखा और एक कंगाल विधवा को 2 दमड़ी डालते हुए देखा। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस कंगाल विधवा का दान सबसे बढ़कर है, क्योंकि उन सब ने अपनी बढ़ती में से कुछ दान दिया, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी पूरी जीविका दे दी। अब इस वचन से हमें ये देखना है कि उसने घटी के समय भी अपना पूरा जो 2 दमड़ी उसकी जीविका थी वो पूरा दे दिया। उसने कल की चिंता नहीं की। उसने ये नहीं सोचा मैं क्या खाऊंगी, क्या पहनूंगी, कैसे रहूंगी। जिस प्रकार इस वक्त हम सब की प्रभु कठिनाई से गुजर रहा है, ये दिन हमारे पूरा साल कठिनाई से गुजरा है हम सब का, लेकिन हम सब संकोच करते हैं कि नहीं, ये पैसा हम दे देंगे तो इसके बदले हम हमारा ये काम कर लेंगे, या हमारे घर का ये काम हो जाएगा, या हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर लेंगे। हम हर्ष से, खुशी से अपना दान और दशवांश नहीं देते हैं। ये उदाहरण है हमारे लिए कि हमें खुशी से, उत्साह से, पूरे मन से परमेश्वर को अपना दान और दशवांश देना चाहिए, क्योंकि वो अपने आकाश के सारे झरोखे हमारे लिए खोल देता है। हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब वो पक्षियों को भूखा नहीं रखता है तो हम उसके स्वरूप में हैं, वो हमारी चिंता क्यों करना करेगा। तो आइए हम अपना दान और दशवांश अपना उत्तम परमेश्वर को दें। आप अगर अपना दान और दशवांश देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आए डिटेल्स में आप भेज सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर हमसे संपर्क करें, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। अगर आपको कोई प्रार्थना की और किसी जानकारी की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क करें। प्रेज द लॉर्ड। Church, it's time to take Holy Communion. कलीसिया, अब समय है प्रभु भोज लेने का। When we take communion, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, we are remembering Christ's sacrifice on the cross. हम मसीह के क्रूस के बलिदान को याद करते हैं। The bread and wine are tangible, visible reminders of Christ's love for you and me. रोटी और दाखरस वास्तविक और दिखाई देने वाले अनुस्मारक है मसीह के प्रेम के, जो हमारे और आपके प्रति उसने दिखाया। Let us pray for the communion. आइए हम प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करेंगे। Father, I thank you. पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। This bread and this cup इस रोटी और इस प्याले के is लिए, a symbol of Christ's body and blood. जो मसीह की देह है और उसके लहू के चिन्ह है। Forgive all our sins, Lord, हमारे सभी पापों को क्षमा करें as प्रभु, we partake this communion in worthy manner. जैसे हम योग्य रीति से इसमें भाग लेंगे। Even in the year 2021, और प्रभु इस नए वर्ष 2021 में let us live a victorious life. हम एक जयवंत जीवन जिए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमेन। Now you can partake this communion in your homes. और अब आप अपने अपने घरों में प्रभु भोज में हिस्सा लें। ये कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों
को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नए शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नए शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। Once again, New Year greetings to all. एक बार फिर आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। The word for 2021 is a year of rebuilding. 2021 के लिए वचन है पुनर्निर्माण का वर्ष, And the key verses are from the book of Nehemiah. और उसके मुख्य वचन नेहमाया की किताब से हैं। Nehemiah 2 verse 17 and Nehemiah 2 verse 20. नेहमाया अध्याय 2 वचन 17 और नेहमाया का अध्याय 2 वचन 20। We will be studying from the book of Nehemiah this whole month of January 2021. और इस पूरे महीने जनवरी 2021 में हम नेहमाया की किताब से सीखेंगे। Nehemiah is the last historic book in the Old Testament. पुराने नियम की आखिरी ऐतिहासिक किताब है नेहमाया की किताब। The purpose of this book of Nehemiah is नेहमाया की इस किताब का उद्देश्य है to show the long and slow process connecting with the rebuilding of Jerusalem. यरूशलेम के पुनर्निर्माण से जुड़े उस लंबी और धीमी प्रक्रिया को दिखाना And the restoration of Israel और साथ ही साथ इजराइल की पुनर्स्थापना को दिखाना after the Babylonian captivities. बाबेल की बंधुआई के बाद To give information rebirth as a nation. और इस यहूदियों के एक राष्ट्र के रूप में फिर से जन्म लेने की जानकारी देना And to reveal how these difficulties were overcome by the help of God. और ये प्रकट करना कि इन सभी कठिनाइयों को कैसे उन्होंने उस पर जय हासिल की परमेश्वर की मदद से। The book of Nehemiah has 13 chapters. नेहमाया की किताब में 13 अध्याय हैं। So I have divided my sermon into two main sections. तो मैंने अपने संदेश को दो मुख्य भागों में बांटा है। The first section, जो पहला भाग है the rebuilding of the wall of Jerusalem. वो है यरूशलेम की शहर पनाह का पुनर्निर्माण। That covers Nehemiah chapters 1 to chapter 7. और जो है नेहमाया के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक उसमें पूरा आता है। The second section और जो दूसरा भाग है is the restoration of the Jews. वो है यहूदियों की पुनर्स्थापना। That covers Nehemiah chapter 8 to chapter 13. जो नेहमाया के अध्याय 8 से लेकर अध्याय 13 में है। Today and next Sunday I will be sharing the first section.
आज और आने वाले रविवार को मैं पहले भाग में से सिखाऊंगा, which is the rebuilding of the wall of Jerusalem. वो है यरूशलेम की शहर पनाह का पुनर्निर्माण। There were at least two reasons for building the wall of Jerusalem. यरूशलेम की शहर पनाह का पुनर्निर्माण करने के पीछे कम से कम दो कारण थे। First reason, पहला कारण, it was necessary for protection. वो सुरक्षा के लिए जरूरी था, That is to keep the outsiders out. जिसका अर्थ है कि जो बाहर वाले हैं उन्हें बाहर ही रखा जाए। Second reason, और दूसरा कारण, it was necessary for separation, वो अलग करने के लिए जरूरी था, to keep the insiders in. यानी जो अंदर वाले हैं उन्हें अंदर ही रखा जा सके। In the first section of the rebuilding of the wall of Jerusalem, यरूशलेम की शहर पनाह के पुनर्निर्माण के इस पहले भाग में let me share 5 things. मैं 5 बातें आपके साथ बांटता हूँ। First thing पहली हम देखते हैं, is desolation. वो है उजाड़पन। Nehemiah means Yahweh has comforted. नेहमाया इस नाम का अर्थ है याहवे ने सांत्वना दी है। Nehemiah was a common man in an unique position. नेहमाया एक साधारण मनुष्य था, लेकिन एक खास पद पर था। Nehemiah served the king of Persia in an important position as a cupbearer. नेहमाया फारस के राजा के पियाओ के महत्वपूर्ण पद पर सेवारत था। One of the cupbearer's duty और जो पियाओ होता है उसका एक कर्तव्य ये होता है, was to choose and taste the king's wine, वो है राजा का जो दाखरस है उसको चुनना और उसे चखना, to make certain that it was not poisoned. ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि उसमें जहर नहीं मिला है। He was a trusted man of the king. वो राजा का भरोसेमंद व्यक्ति था। Nehemiah learns from the returning Jews और जो वहां से लौटकर आए यहूदी थे, उनसे नेहमाया को ये पता चलता है of the pitiful state of Jerusalem. कि यरूशलेम की कैसी दयनीय हालत हो चुकी है। The report breaks his heart. और इस खबर से उसका दिल टूट जाता है। Upon hearing this, जब वो इस खबर को सुनता है, Nehemiah begins a time of, नेहमाया शुरू करता है firstly, सबसे पहले confession to God over the deeds of his people. अपने लोगों के कार्यों को अंगीकार करना वो शुरू करता है। That is Nehemiah chapter 1 verses 6 and 7. वो है नेहमाया के अध्याय 1 में वचन 6 और 7 में हम पढ़ते हैं। And secondly, और दूसरा हम देखते is हैं intercession to God over the needs of his people. नेहमाया समय निकालता है, अपने लोगों की जरूरतों के लिए मध्यस्थी प्रार्थना करता है परमेश्वर के आगे। And that's Nehemiah 1 verses 8 to 11. वो है नेहमाया अध्याय 1 वचन 8 से 11 में। Today, if in our life, if there is any sort of desolation, आज हमारे जीवन में भी अगर किसी प्रकार का उजाड़पन है, firstly, let us confess to God. तो सबसे पहले हम परमेश्वर के आगे अंगीकार कर लें। Beloved, it is important to acknowledge our failures और प्रियो, बहुत जरूरी है कि सबसे पहले अपनी भूलों को हम मान लें, and humble ourselves अपने आप को नम्र करें before God परमेश्वर के सामने, in order to bring hope and restoration. ताकि फिर से उम्मीद और पुनः स्थापना हमारे जीवन में लौट सके। The people in Jerusalem जो यरूशलेम के लोग थे, were living wallless and gateless. वो बिना शहर पनाह के और बिना फाटक के जी रहे थे। It was totally defenseless city. और वो शहर पूरी तरह से किसी भी सुरक्षा या बचाव के बिना था। And in this condition, Jewish people were living for decades. और इस हालत में यहूदी लोग कई दशकों से जी रहे थे। And no one bothered to rebuild the wall of Jerusalem. और किसी को भी परवाह नहीं थी यरूशलेम की शहर पनाह का पुनर्निर्माण करने की। But God gave Nehemiah the burden लेकिन परमेश्वर ने नेहमाया को ये बोझ दिया to rebuild the wall of कि Jerusalem. वो यरूशलेम की शहर पनाह का पुनर्निर्माण करे। Second thing दूसरी बात is development. वो है विकास। The Lord heard Nehemiah's prayer परमेश्वर ने नेहमाया की प्रार्थना को सुन लिया and granted him favor with the king too. और राजा के दृष्टि में भी उसे अनुग्रह दिलाया। And now Nehemiah was given permission to go and rebuild the wall of Jerusalem. और अब नेहमाया को अनुमति मिल गई कि वो जाए और यरूशलेम की शहर पनाह का पुनर्निर्माण कर सके। And Nehemiah was planning and preparing for the construction of this great wall. और अब ये जो महान जो बड़ी शहर पनाह थी
उसके निर्माण के लिए नेहमाया जो है योजना बनाने लगा, उसके प्रति वो अपना उद्देश्य बनाने लगा। The length of the wall was over 4,000 meters. इस शहर पनाह की जो लंबाई थी 4,000 मीटर से भी ज्यादा थी। The height was 12 meters. उसकी ऊंचाई 12 मीटर थी And the thickness was over 8 feet. और उसकी चौड़ाई 8 फीट से ज्यादा थी। It was a huge task, beloved. और प्रियो, ये बहुत ही बड़ा कार्य था। There were some group of people who were against this effort और कुछ लोग थे जो इस प्रयास के खिलाफ थे and tried to mock and accuse Nehemiah. और उन्होंने कोशिश की कि नेहमाया का मजाक उड़ाएं और उस पर वो इल्जाम लगाएं। Yes, and tried to accuse and tried to discourage Nehemiah. और नेहमाया को उन्होंने निरुत्साहित करने की कोशिश की, But Nehemiah was firm in his mission. लेकिन नेहमाया अपने कार्य में दृढ़ था। Moreover, he was also very careful साथ ही साथ वो बहुत सावधान भी था in not revealing much of his plan to his enemies. और उसने अपनी योजनाओं को ज्यादा अपने शत्रुओं पर प्रकट होने नहीं दिया। Beloved, we need to develop our lifestyle of prayer. और प्रियो, हमें भी अपने जीवन में अपनी प्रार्थना की जीवन शैली का विकास करना है। We must plan our things for the day or for the month and for the year because we have entered a new year for 2021. और हमें भी योजना बनानी चाहिए अपने दिन के लिए, अब इस महीने के लिए या इस आने वाले वर्ष के लिए, क्योंकि इस नए वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। Nehemiah helps us understand नेहमाया हमें ये समझने में मदद करता है the who, what, where, when, how and why of prayer. प्रार्थना के बारे में, कि प्रार्थना के विषय में, कि कौन, क्या, कहाँ, कब, कैसे और क्यों, ये हमें समझने में मदद करता है। Who? सबसे पहले कौन? Nehemiah focused on the greatness of the one he was praying to God himself. नेहमाया ने उसकी महानता के ऊपर अपना ध्यान लगाया जिसके पास वो प्रार्थना कर रहा था, यानी स्वयं परमेश्वर पर। Second, what? दूसरा क्या? Nehemiah prayed for favor नेहमाया ने अनुग्रह के लिए, परमेश्वर के उपकार के लिए प्रार्थना की, against resistance. ताकि जो विरोध आ रहा है उसके खिलाफ। He prayed for strength उसने बल के लिए प्रार्थना and he prayed for God's will. और उसने परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना की। Third, तीसरा, where? कहाँ? Pray where you have responsibility. जिस क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी है वहाँ आप प्रार्थना करें। Next, when? उसके बाद हम देखते हैं कब। Make prayer a first response, not a last resort. प्रार्थना को अपने जीवन का पहला प्रत्युत्तर बनाए, ना कि अंतिम सहारा। Next, how? और फिर हम देखते हैं कैसे। With repentance and without ceasing. पश्चाताप करते हुए और लगातार हमें प्रार्थना करनी है। And lastly, why? और अंत में हम देखते हैं क्यों। We are not great and awesome. क्योंकि हम महान और अद्भुत नहीं हैं। God himself is great and awesome. परमेश्वर स्वयं महान और अद्भुत है। God commands us to pray. परमेश्वर हमें प्रार्थना करने की आज्ञा देता है। The chief purpose of prayer is that God may be glorified in the answer. और प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रार्थना के उत्तर के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। As the Oshivara Church, we have declared a 21 days of prayer and fasting this month of January. और ओशिवारा कलीसिया में हमने घोषणा की है इस जनवरी के महीने में 21 दिन की प्रार्थना और उपवास की। As we continue, और जैसे हम लगातार उसे करते हैं, beloved, do not give up. प्रियो, आप हार न माने, Because it is the commanded by God to pray and God surely answers our prayer. क्योंकि परमेश्वर ने ये आदेश दिया कि हमें प्रार्थना करनी है और परमेश्वर निश्चित प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। Third तीसरा हम देखते हैं, thing तीसरी बात is distraction. वो है ध्यान भंग। There was distraction when Nehemiah started his work. नेहमाया ने जब अपना काम शुरू किया तो उसका ध्यान भंग करने की कोशिश की गई। A work for God will always be met by both human and satanic opposition.
परमेश्वर के कोई भी कार्य का विरोध होता ही है, मनुष्यों द्वारा और शैतान द्वारा। Many methods were used to stop the rebuilding the wall of Jerusalem. कई तरीके अपनाए गए कि यरूशलेम की शहर पनाह के पुनर्निर्माण को रोका जा सके। And I'm going to share some of those things that they were distracted to stop the work of rebuilding the wall of Jerusalem. और कुछ बातें मैं आपके साथ अभी बांटूंगा कि जिनके द्वारा वो उनका ध्यान भंग करने की कोशिश कर रहे थे ताकि यरूशलेम की शहर पनाह का पुनर्निर्माण न हो सके। First is ridicule. सबसे पहला हम देखते हैं उपहास। Is Nehemiah 2 verse 19 नहमाया अध्याय 2 वचन 19 में and Nehemiah 4 verses 1 to 3. और नहमाया अध्याय 4 वचन 1 से 3। But Nehemiah took his case before God and continued the good work. लेकिन नहमाया ने अपनी बात को परमेश्वर के आगे लगातार रखा और अपने काम को करता रहा। Second, threats. दूसरा हम देखते हैं धमकी। Nehemiah 4 नहमाया अध्याय 4 verses 1 and 6 to 9. वचन 1 और वचन 6 से 9 में। Once again, Nehemiah prayed to God एक बार फिर हम देखते हैं नहमाया ने परमेश्वर से प्रार्थना की and set a watch against the opposition day and night. और जो उसके विरोधी थे उनके प्रति दिन और रात उसने पहरा रखा। Third, discouragement. तीसरा हम देखते हैं निराशा। Nehemiah 4 नहमाया अध्याय 4 verses 10 to 12. वचन 10 से 12 में Nehemiah reminded the people नहमाया ने लोगों को ये याद दिलाया of God's power and organizing for the work and defense. कि परमेश्वर की सामर्थ किस प्रकार से महान है और कैसे उन्होंने योजना बनाई और कैसे बचाव करेगा परमेश्वर। Fourth, चौथा fear. डर। Nehemiah 4:11 to 23. नहमाया अध्याय 4 वचन 11 से 23 में Nehemiah stationed armed guards नहमाया ने जो है सिपाहियों को तैनात किया He appointed a trumpeters और उसने तुरही बजाने वालों को नियुक्त किया to sound an alarm if needed. ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो चेतावनी दे सके। Like when the trumpet would be blown, then they all would gather at that one point. कि अगर वो तुरही बजती है तो सभी लोग तुरंत एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। He prepared his men by issuing both weapon and working tools to every man. उसने अपने लोगों को तैयार किया कि हर एक व्यक्ति के पास उसने हथियार भी दिए और काम करने के औजार भी दिए। Fifth, पांचवा internal strife. अंदरूनी झगड़े। Nehemiah 5 नहमाया अध्याय 5 1 to 5. वचन 1 से 5 में हम देखते Some of the rich Jews हैं, कुछ जो अमीर यहूदी थे were mistreating the poorer Jews. वे गरीब यहूदियों के साथ बुरा व्यवहार कर And रहे Nehemiah was furious थे और नहमाया इससे क्रोधित हो गया and settled the matter. और उसने इस मामले को सुलझाया। Internal problem. He brought the people of his own people into unity and understanding and oneness. उस अंदरूनी समस्या को उसने सुलझाया और अपने लोगों को उसने फिर एक बार समझ और एकता में लाया। 6. Laziness. छठी बात हम देखते हैं आलसीपन। Nehemiah 4 verse 10. नहमाया अध्याय 4 वचन 10 में Some people were lazy and of no help whatsoever. कुछ लोग आलसी थे और कोई भी तरह से मदद नहीं कर रहे थे। And lastly, और आखिर में lying prophets. झूठे नबी। Nehemiah 6 नहमाया अध्याय 6 verses 10 to 14. वचन 10 से 14 में। These lying prophets were frightening Nehemiah. ये झूठे नबी नहमाया को डरा रहे थे And they would tell him that he would be killed. और वो उसे ये कह रहे थे कि वो मारा जाएगा। But Nehemiah was not afraid लेकिन नहमाया डरा नहीं because God was his protector. क्योंकि परमेश्वर उसका रक्षक था। Beloved, today, प्रियो आज भी the enemy of our soul हमारे प्राणों का जो शत्रु है bring all sort of distraction. वो हर प्रकार से हमारे ध्यान को भंग करने But I want कोशिश to tell you, करता है। beloved, लेकिन प्रियो में ये बताना fix चाहता your eyes on Jesus. हूं, अपनी आंखों को यीशु पर लगा कर रखें, Keep him first. उसे प्रथम रखें अपने जीवन में। So today we have learned आज हमने सीखा है under the first section from the book of Nehemiah chapters 1 to 7. नहमाया के अध्याय 1 से 7 से पहले भाग में नहमाया की किताब से हमने आज सीखा The rebuilding of the wall of Jerusalem. यरूशलेम की शहर पनाह के पुनर्निर्माण के द्वारा। First is desolation. पहले हमने देखा कि उजाड़पन था, Second is development. दूसरा हम देखने कैसे विकास हुआ And third is distraction. और तीसरा हमने देखा कैसे ध्यान भंग करने की कोशिश हुई।
Next Sunday, I will continue to share on this topic 2 more points or 2 things. और अगले रविवार इसी विषय पर मैं आगे और 2 बातें आपको सिखाऊंगा। That I will complete the first session called Rebuilding the Wall of Jerusalem. और अगले रविवार ये पहले भाग को हम पूरा करेंगे जो है यरूशलेम की शहर पनाह का पुनर्निर्माण। Let me pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Lift up your hands. आइए अपने हाथों को हम उठाएं। We look to the Creator. हमारे सृष्टिकर्ता की ओर हम दृष्टि करें। We look to Jesus, हम यीशु की ओर देखते हैं who is on the throne. जो सिंहासन पर विराजमान है He is looking down upon us. और वो हमारी ओर देख रहा है Let us find favor in His sight. और उसकी दृष्टि में हम अनुग्रह को पाएंगे। As He is a person non-stop praying and interceding for you and me before the Father. क्योंकि यीशु मसीह बिना रुके आपके और मेरे लिए मध्यस्थी प्रार्थना कर रहा है अपने पिता के पास। Lord, help us to rebuild our spiritual life. प्रभु हमारी सहायता करके हमारे आत्मिक जीवन का हम पुनर्निर्माण करें। Our emotion life, हमारी भावनात्मक जीवन, our physical life, हमारे शारीरिक जीवन in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Lord, rebuild our financial life प्रभु हमारे आर्थिक जीवन को पुनर्निर्माण करें प्रभु, so that our income will be far greater than the expenses. ताकि हमारे खर्चे से कहीं बढ़कर हमारी कमाई हो प्रभु। Lord, rebuild our marriage life as marriage is a covenant. प्रभु हमारे वैवाहिक जीवन को पुनर्निर्माण करें क्योंकि विवाह एक वाचा है। Lord, help us to have the same qualities that Nehemiah had. प्रभु हमारी सहायता करके हमारे अंदर भी वही गुण विकसित हो जो नेहमाया के अंदर थे। A man of prayer, वो एक प्रार्थना का व्यक्ति a था, man of vision, वो दर्शन वाला a व्यक्ति, man who planned, वो योजना करने वाला a व्यक्ति, man who did not get distracted and did not give up, वो ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना ध्यान भंग होने नहीं दिया और उसने हार नहीं a मानी। man who worked hard, वो मेहनत करने वाला व्यक्ति a था, man who was led by the Spirit of God. वो ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाया जाता था। Holy Spirit, come on right पवित्र now. आत्मा इसी समय आप Come आए। upon every person here. हम सब के ऊपर आप आए। Fill every person right हम सबको now. आप भर दे इसी समय प्रभु। Come on, church. आइए कलीसिया, In your own words, welcome the Holy Spirit. अपने अपने शब्दों में आप पवित्र Wherever आत्मा you को are. स्वागत करें जहाँ कहीं आप हैं, Because He is God Almighty. क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। You welcome Him. आप उसको स्वागत करें, उसको आमंत्रित करें। Minister to every person here right. प्रभु आप सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में Touch कार्य every करें। person हर right एक को now. आप स्पर्श करें इस समय From the प्रभु। crown of the head to the sole of the feet. प्रभु हमारे सिर से लेकर हमारे पैरों तक प्रभु आप हमें स्पर्श करें। And use them for your glory. प्रभु और सभी को आपकी महिमा के लिए उपयोग करें। In the mighty name of Jesus I pray. यीशु के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। I bless you all. मैं आप सब के ऊपर आशीष की घोषणा करता हूँ See you next Sunday. और अगले रविवार फिर आपसे मिलेंगे। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।